এটা হরিদ্বার প্ল্যাটফর্ম। হরিদ্বার প্ল্যাটফর্মগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। হরিদ্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা যে গরিবদাসী ধর্মশালাতে উঠেছি সেটা একদম প্ল্যাটফর্ম থেকে একদম গায়ে। আর এখানকার এই গরিবদাসী ধর্মশালাতে বাজেট পার হেড 100 টাকা করে পড়ে। আর এই প্ল্যাটফর্মে সিঁড়ি 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে সে ট্রেন থামবে, সেখান থেকে ডিস থেকে নেবে সামনে এসে এখান থেকে আমি রাস্তাটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে আপনারা বার হবেন, বার হয়ে এখানে গাড়ি ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে, এটা পার করে সামনে মেন রোডের সামনে মেন রোডের পাশ থেকে আপনারা সোজা বাড়াবেন। একটু পাহাড় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আর এই রোড সোজা, এই রোড থেকে গেলে गंगा घाट अमर सिंह है। इधर से गाड़ी से जाएगा। 6 दिन का प्रोग्राम है। तो यही गाड़ी আমাদের 6 দিনকে 18,600 টাকা নিয়েছে। আর দাদা যেতে যেতে আমাদেরকে স্পটগুলো বলে দেবে, ঘুরিয়ে দেবে, আমরাও আপনাদের সাথে থাকবো। এই আমাদের গাড়ি, এই গাড়িতে করে আমরা যাব 6 দিনের প্রোগ্রাম। সুইফট ডিজায়ার গাড়ি है। আর ডেস্টিনেশনে আমি আপনাদের গাড়ির নাম্বার দিয়ে দেবো আর ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, যদি আপনাদের ইচ্ছা এই গাড়িতে করে ঘুরতে পারবেন। এই রোডটা ক্রস করে এই গরিবদাসী ধর্মশালা, এখানকার ডেস্টিনেশন আমি এখানকার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো, আপনারা এখানে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই পথ দিয়ে প্রবেশ করে এটা ম্যানেজারের অফিস রুম, এটা অফিস রুম। এখান থেকে আপনারা প্রবেশ করবেন। এখানে প্রচুর রুম পাওয়া যায় কম বাজেটের মধ্যে। এখানে ভগবান কেউ দর্শন করতে পারবেন। এটা দোতলায় যাওয়ার পর এটা গরিবদাসী ধর্মশালা। এখানে আপনারা 100 টাকা পার হেড পেয়ে যাবেন। যারা মধ্যবিত্ত তাদের জন্যে আপনারা কম খরচে এখানে গরিবদাসী ধর্মশালাতে রুম পেয়ে যাবেন। অপোজিট থেকে আপনারা এখানে মেন রোড, এই মেন রোডে সোজা গেলে গঙ্গার ঘাট। আপনারা আসবেন, কম পয়সার মধ্যে এখানে রুম পেয়ে যাবেন। আমরা আমাদের গাড়ি হরিদ্বার স্টেশনের পাশ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ডাইরেক্ট আমরা যাব উকি মঠ। कल आप हरिद्वार घूमे? हरिद्वार तो कल सुबह में। गंगा माता बहुत बढ़िया है। गंगा माता बढ़िया है। गंगा जो है ना, क्या नाम है आपका? इष्टि। इष्टि। इष्टि
क्रिस्टी। क्रिस्टी, हाँ भगवान कृष्ण के नाम से है। कृष्णा और क्रिस्टी क्यों? या धर्म में जय शिव शंकर, जन्म से लगा के मरण तक है और गंगा अमर है। गंगा ही एक ऐसी है कि जो लेती नहीं है, लोगों का उद्धार ही करती है। हरिद्वार में अगर गंगा जी ना होती तो शायद कुछ भी ना होता। गंगा तो हरिद्वार में से उत्पत्ति है ना? जी, गंगा গঙ্গা হরিদ্বার থেকে উৎপত্তি নয়, गंगोत्री से उत्पत्ति, गंगा की गंगोत्री उत्पत्ति থেকে উৎপত্তি। गोमुख से। गोमुख से গোমুখ उत्पत्ति से। है। हाँ। ওই ওর নাম কি, স্বর্গে যখন গঙ্গা ছিল জি। তখন ওই ভগীরথ তপস্যা করেছিল, কঠিন তপস্যার ফলে ওনার 7 পুরুষ পূর্বপুরুষ উদ্ধার করার জন্য কঠিন তপস্যার ফলে, তবে বাবা শিব ওই গঙ্গাকে মাথায় ধরেছিল, তারপরে এই ধরিত্রীতে অবতরণ করেছিল। আর ওই গঙ্গোত্রী থেকে বয়ে ওই তো গঙ্গা। গঙ্গোত্রী, তারপর ওই দেখো মাথায় গঙ্গা। কালকের ওপারের ঘাটে যতটা টান ছিল, এপারের ঘাটে মানে প্রচুর টান ছিল, এখানে এতটা টান নেই। বাট কালকে যখন ফিরে আসছিলাম প্রচুর টান, ওখানে কেউ পড়লেই মানে টেনে নিয়ে চলে যাবে। पहले अपना गोमुख ओखीमठ। जोकीमठ। कमरपाल। हाँ जी। ओमा बाबा सीधा माथा থেকে জল मेरा পড়ছে। नाम अमर सिंह है। अमर सिंह। जी। आप गाड़ी अच्छा चलाते लेते हैं? बस जी वो तो मुझे आप ही बताएंगे कि मैं कैसे चला लेता हूँ। ओके, आप चलाएंगे ना, उसके बाद देखेंगे। जी ठीक है। देखो कोई भी आदमी किसी के पीछे बैठता है तो पहले मालूम करता है। फर्ज कीजिए कि कोई आदमी डॉक्टर से भी दवा लेने के लिए जाता है तो मालूम करता है कि डॉक्टर अच्छा है या कैसा है। हाँ। अगर किसी कोई अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है तो मालूम करता है कि वो ट्यूशन कैसा पढ़ाता है। ये अच्छा। तो वो होता ही है और ये तो जानकारी से। वाह, मानतू ओंगटा देख। ये Look. देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखिए ये ओम है और अभी आप लेफ्ट साइड में और देखेंगे हरिद्वार में 5 देवियां हैं। 5 देवियां है। 5 देवियां। वो कौन कौन सा है? जी, एक आप देखिए लेफ्ट साइड में भी, आप पहाड़ के ऊपर देखेगा वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, हाँ। ये होटल भी देख लीजिए, ये भागीरथी है और वे अलकनंदा है। वे अलकनंदा ध्यान रखना। ये और ये अलकनंदा है, ये भगीरथी है। हाँ होटल है, ये तो होटल है, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओ बाबा और सामने पहाड़ पे मंदिर देखिए, माँ मनसा देवी। मनसा देवी है, जी। मनसा देवी टेम्पल है ना? मनसा देवी टेम्पल। माँ मन इस टेम्पल का नाम है मनसा देवी। मनसा देवी, मन की मुराद पूरी करने वाली। ये राइट साइड में देखिए, वो देखिए पहाड़ पे, उस पहाड़ पे दिख रहा है टेम्पल? हाँ। वहाँ पर 2 टेम्पल है, आपको एक दिख रहा है तो वो जो टेम्पल के इस साइड में आप एक पिलर देख रहे होंगे, एक छोटा सा दिख रहा होगा पिलर, छोटा सा, उस पहाड़ी की माँ माया का है और ज्वाला माता का है और एक आप वहाँ पर चंडी देवी का है। हाँ। मेन मंदिर वहाँ पर चंडी देवी का है। एक साइड में माँ मनसा हो गई, एक साइड में माँ चंडी हो गई, इनके बीच में गंगा जी हो गई, हाँ। 3 देवियां हो गई। ये जो लोग हैं और शिव बाबा ठीक है ना, पीछे देखो ना। मानते ही हैं मगर अपने रिश्ते में भी मानते हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान अगर मानते हैं तो ये हमारी आस्था है। ठीक है ना, ये हमारी आस्था है। अगर हम भगवान को रिश्ते से मानते हैं, ठीक है जी, ये हमारा प्रेम है। क्योंकि हम उनको रिश्ते से मानते हैं तो हमारा हक बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ। कि किसी को अगर रिश्ते से बोला ना तो हमारा हक बढ़ जाता है। तो हम अपना हक बढ़ाने के लिए भगवान शिव को फूफा के रूप में पसंद करते हैं। समझ रहे बात को? फूफा। फूफा, फूफा यानी कि जो हमारे बाप का जीजा हुआ, बाबा का जीजा है। हाँ। उसको फूफा बोलते हैं। तो ये रिश्ता है। यहाँ पर 5 देवियां हैं और जहाँ जहाँ पर गंगा जी गई है निकल कर, वहाँ वहाँ पर भगवान शिव के ही मंदिर है। चाहे दक्ष हो, चाहे कहीं पर भी आप जाए, जहाँ जहाँ पर कुंभ भरता है वहाँ वहाँ पर भगवान शिव शिव के है। ही मंदिर है। बोलो ना। क्या करें? ये चीज होती है संजोग। ठीक है ना, आप और हम मिले हैं, ठीक है, आज आपका और हमारा मिलना लिखा हुआ था, ठीक है, तो
अब कल आपके साथ कोई और था और उनके हाँ माता सती ने जन्म लिया, और माता सती ने जब जन्म लिया तो दक्ष प्रजापति के कहे, ब्रह्मा जी के कहे से दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ किया। कहते हैं कि एक इष्ट धर्म चाहे जितने भी हो सबका बाप एक ही है, वह है सनातन। सनातन धर्म। हर किसी की कड़ी जुड़ी हुई है इससे, मगर क्या है कि कोई आंख बंद करके उठता है, कोई आंख खोल के उठता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि भगवान शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया और मैं इसका ससुर हूं, तो तब उसने कहा कि इसने प्रणाम नहीं किया तो इसको किसने बुलाया। अब तो खूब अहंकार छिलो, वो अहंकार में आ गए। अहंकार। महाभारत উনি में অহংকারী এই জন্য ছিল যে উনি ভগবান ব্রহ্মার পুত্র। আমি ব্রহ্মার পুত্র, আমি একটা সৃষ্টি आप बंगाली में ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ? ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप बंगाली में, सर को बता रहे हैं। हाँ। आपको समझ में तो आ रही है मेरी बात? हाँ, समझ आ रहा है। मैडम को भी आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, रे। ठीक है। तो तब उन्होंने जो है क्रोध करके उन्होंने कहा कि आज से मुझे जिस यज्ञ में बुलाओगे उस यज्ञ में भगवान शिव नहीं होंगे। এটা তো আমি দেখেছিলাম। और दक्ष क्या था कि दक्ष सारे देवताओं का प्रधान था, सारे देवताओं का पता प्रधान था। अब प्रधान से भी बड़ा कोई होता है? नहीं। जो बड़े थे वो तीन ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तब हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ पर यज्ञ किया और इस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, और वो यज्ञ कहाँ पर किया? हरिद्वार कनखल में। हरिद्वार में जो कनखल जगह है वहां पर यज्ञ किया, और वहां पर यज्ञ किया तो जब यज्ञ करा तो सब देवताओं को बुलाया, तो सब कैलाश पर्वत से जैसे आसपास से होते जा रहे थे, तो तब नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको निमंत्रण नहीं आया। उन्होंने कहा भाई किस बात का? भगवान शिव ने कहा किस बात का? तो तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो निमंत्रण नहीं आया। और कहते हैं कि अगर बिना बुलाए कितनी भी मिट्टी खीर बटरी हो तो बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि भैया हमें निमंत्रण नहीं आया तो हमें जाना नहीं चाहिए। उनका कार्य है वो करे अपने कार्य को, हम नहीं जाएंगे। तो माता सती कहने लगी कि मैं जाऊंगी। भगवान शिव कहने लगे कि आप अपने पिता के यहाँ जा सकती हैं, जिस टाइम मर्जी जा सकती हैं, मगर वहां से निमंत्रण नहीं आया। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी। तो माता सती ने जिद करी और माता सती चली गई। माता सती अपने पिता से मिले तो उनका पिता का रूठा हुआ रूप देखकर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी कार्य पर नाराज होंगे जो यज्ञ हो रहा है। तो तब उसने कहा तीर दो नहीं तुझे एक ही मिलेगा। सुन रहे ना था? कहते तीर एक ही मिलेगा गजनी को मारने के लिए, एकटाई तीर हो जाए, एक ही तीर मिलेगा और उसका प्रबंध मैं करवाऊंगा। तो तब उसने गजनी से कहा कि मोहम्मद गजनी, और 3 बार ताली पटकाने के बाद तीर अंदाज में, और तीर मारने में बहुत अंदाज है, और ये इसका इतना गहरा तीर है कि जिसपे ये मारे उसमें बहुत अच्छा। पृथ्वीराज चौहान तीर मार। तो गजनी ने फिर ऐसा ही किया कि 3 बार ताली पटका कर उसने कहा कि पृथ्वीराज चौहान तीर मार। पत्नी वो पतिव्रता थी वो। हाँ वो पतिव्रता थी, हाँ। लेकिन नारायण उसका पतिव्रता का भ्रम तोड़ दिया। हाँ, भ्रम तोड़ दिया। उसके बाद उसने साथ दिया था। देख रहे ना आप ऊपर, वे आनंदा रिसोर्ट है। ये मान लीजिए वो सबसे ऊपर टॉप है। हाँ सबसे ऊपर टॉप, जो टॉप है ये इस साइड में। ও এলো সঙ্গেই থাকবে। जब तक वो अयोध्या में रहे तो तब तक युवराज
की नगरी है। यहाँ पर तपत स्थल इसको कहा जाता है कि जिन लोगों को समाधि करनी है, जिन लोगों को पूजा पाठ करनी है, या भगवान के दर्शन करने या भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो यहाँ पर आ जाए। ये चीज कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पहुंचे तो तब उनसे पूछा ऋषियों ने कि आपसे कहा कि आप मुखमंडल से तो कहीं के राजकुमार लगते हैं, मैं मासी बड़ ऊपर आपने भगवा कपड़े पहने हुए हैं तो एक आप सन्यासी के रूप में, और आपने धनुष बाण कंधे पर रखा हुआ है तो आप क्षत्रिय दर्शाते हैं। सन्यासी का मतलब वनवास, हम 3 हैं। और मैं क्षत्रिय भी हूँ क्योंकि क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया। ऋषिकेश ये ऋषिकेश। हाँ जी। कहते हैं कि जब लक्ष्मण के प्रति ऋषियों की आस्था जागी तो तब उन्होंने लक्ष्मण जी को जुलाया, अच्छा क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ भूमि पूजन होता था, अच्छा। यहाँ लोग देवताओं की आराधना होती थी, किसी आदमी की पूजा नहीं होती थी। तो उन्होंने सिर्फ देखा कि भाई हम इसको मान सम्मान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो तब माला को झुला सकते हैं, ये देवता नहीं है। तो तब उन्होंने जो है लक्ष्मण जी को जुलाया, तो लक्ष्मण झूलने के बाद में उनको पता चला कि अरे हमसे तो गलती हुई, वो तो भगवान विष्णु जी के अवतार थे भगवान राम, और हमने छोटे भाई को जुलाया। वो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई महाभारत में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, जो भगवान श्री कृष्ण का युग था। महाभारत में क्या सुनना चाहेंगे आप? बोलो कुछ, बोले कुछ। बोलो बोलो ना माँ। कुछ बोले। मैं आपको केदार बाबा के दर की अच्छा, बता हाँ, केदार बाबा के। देते हैं कि केदार बाबा के दर पर, और ये हकीकत है, कोई झूठी बात नहीं ना है। ना, हम सुना है। हाँ, कहते हैं कि वो दूर से आ रहा था और जैसे ही मंदिर पर पहुंचा तो कपाट बंद हो गए। कपाट बंद हो गए। उसने वहां के पंडित से बहुत रिक्वेस्ट करी और बहुत कहा कि भैया मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो सब कहने लगे कि जी बाबा ऐसा है कि अब तो 6 महीने लग जाएंगे दर्शन में, और जो एक बार कपाट बंद हो गए हम दोबारा नहीं खोल सकते। ये अब सगुन होगा कि हम दोबारा खोलेंगे, ये अच्छा नहीं है। हमने परमिशन ली है कि हम आपको अगले साल इतने टाइम के बाद खोलेंगे। और परमिशन किससे ली? कि स्वयं भगवान से ही ली है, स्वयं भगवान से ही ली है कि हम उस मासक को या उस त्योहार को खोलेंगे, और हम अब नहीं खोल सकते। अब वो जो साधु इतनी दूर से आया था भगवान के दर्शन के लिए, वो मायूस होकर बैठ गया।
कहते हैं कि भगवान इतना हठी नहीं होता जितने उसके भक्त हठी होते हैं। तो वो जो साधु अपनी हट कर कर बैठ गया कि हे भगवान, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आया, तो क्या आप मुझे थोड़ी देर के दर्शन नहीं दे सकते? গল্পটা বলছি শুন, গল্পের মাঝে কথা বলিস না। तो कहने लगे कि आप क्या मुझे थोड़ी देर के दर्शन नहीं दे सकते? तो वो साधु हट कर कर बैठ गया कि भगवान, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। जितने भी लोग हैं वो सब वहां से चालू हो गए वापसी आने, कपाट बंद हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, सब ने अपने होटल गेस्ट हाउस बंद कर दिए। आर्मी वाले जो थे वहां पर वो भी नीचे को आने लगे। सब ने उस पंडित से कहा, ब्राह्मण से कहा, साधु से कि भैया आप चलो, सब लोग जा रहे हैं, आप भी चलो। उसने कहा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा। कहने लगे भैया साधु तो जो है बहुत हट करके बैठ गया, अब पता नहीं इसका क्या होगा। अब वो हट करके भी ऐसे ही बैठ गया कि अपना समाधि में लीन होके बैठ गया। जब भगवान ने देखा कि भैया मैंने इसको नीचे भेजने का प्रयत्न किया मगर ये नहीं जाना चाह रहा है, तो क्या करा जाए? तो कहते हैं कि भगवान ने उसके पेट में उसको भूख लगाई। किसको भूख लगे बहुत जोर से। अब साधु तो बैठा था तपस्या में और उसको भूख लगी। तो कहते हैं कि भगवान एक साधु का रूप धारण करके और उसके पास खाना लेकर पहुंचे। और भगवान उसके पास खाना लेकर पहुंचे और भगवान ने कहा, भैया साधु आप आंखें खोलो और खाना खा लो। और खाने की सुगंध से उस साधु ने आंखें खोल ली। और उसने साधु ने आंखें खोली और उसने देखा भैया ये साधु है और मेरे वास्ते खाना लेकर आया है। अब उसने कहा भैया खाना कहाँ से लाया? कह रहा यहीं पर पास में भंडारा चल रहा था तो मैं यहीं से लेकर आ गया। अब उस साधु को इतना ज्ञान नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई भंडारा, तो क्या यहाँ से सारे लोग चले गए तो भंडारा कौन करेगा? मगर भूख के सामने और भगवान के दर्शन के सामने उसकी कुछ और नहीं सूझा। उसने कहा भैया मुझे खाना सबसे पहले खाना। अब उसने खाना खाया और खाना खाकर भगवान ने उसको जो निद्रासन दिया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। 6 मास हो गया। और भगवान ने जो कहा उसको कि भैया आपको नींद आ रही है, आप मेरी गोद में सिर रख के सो जाओ। तो कहते हैं कि जब वो आंख बंद कर कर उसकी गोद में सोया तो जब उसकी आंख खुली तो 6 महीने बीत गए। और नीचे से लोग भगवान की डोली लेके जा रहे हैं ओखीमठ से। तो वो साधु कहने लगा कि भैया आप कल परसों तो यहाँ से गए थे और आज आप लोग ऊपर आ गए और मुझे कह रहे कि 6 महीने का टाइम लगेगा। और जो वो पुजारी थे, पंडित थे मंदिर के, उन्होंने देखा भैया इस पंडित को हम 6 महीने पहले यहाँ पर छोड़कर गए थे और ये आज भी यहाँ पर है। वो पंडित साधु कह रहे हैं कि भैया आप लोग तो 2-4 दिन में ही वापसी आ गए। और वह पंडित कह रहे कि भैया आप 6 महीने तक कैसे यहाँ पर रहे? तो यानी कि उस साधु को जिसने खाना खिलाया और वे साधु जिसकी गोद में सोया वो और कोई नहीं भगवान शिव ही थे। तो यही लीला है। हम आपको बताते हैं कि देखो आपका भी 2 पैसा बच जाएगा, ठीक है ना, और आप आराम से घूम भी लेंगे। बढ़िया सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले धनोल्टी जाइए, ठीक है जी। धनोल्टी आप चले गए, धनोल्टी आप घूमिए। वहां पर इको पार्क है
इको पार्क घूमिए, वहां पर आपका हिमालय दर्शन है वे कीजिए, ठीक है ना। वे करने के बाद फिर आप आइए मसूरी। मसूरी पे आप माल रोड घूमिए, ठीक है ना। गाड़ी में ही सामान रखिए, माल रोड घूमिए। माल रोड घूमने के बाद तो वहां पर थोड़ी सी जगह रहती है, इधर उधर थोड़ी सी जगह रहती है। तो हम क्या करते हैं कि कैंपटी फॉल रोड पे कुछ सस्ते होटल होते हैं, क्योंकि जो मसूरी है मेन, वहां पर महंगा होटल होता है। तो मसूरी से थोड़ी सी दूर 4-5 किलोमीटर दूरी पे सस्ते होटल होते हैं और अच्छी सुविधा होती है। तो वहां पर आपको रुकने में बेस्ट रहेगा ये। तो उसमें आपके 2 पैसे भी बच जाएंगे ये जी, और घूम भी आप पूरा लेंगे। फिर उसके बाद उधर से ही आपको कैंपटी फॉल कराकर, ठीक है ना, कैंपटी फॉल पूरा मसूरी घुमाकर तब आपको वापसी हरिद्वार, देहरादून रात में। हाँ ये चौथा घाटी है। ये फैंसी तो सुनता छोड़ो गाड़ी से ओम ये लोग बंदर 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 अजीत डबल का बड़े उत्तराखंड में। जी और बिपुल रावत तो उत्तराखंड। विपिन रावत जी भी उत्तराखंड से ही थे। काफी जो आर्मी जो है ना, उत्तराखंड में कुछ ये ऑफ सीजन में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है जी। और नहीं तो बाकी बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। ये अलकनंदा। बद्रीनाथ से आ रही है वो सीधी अलकनंदा। अरे शांत पड़ी है बिल्कुल। और ये जो है ये गंगा जी गंगा गंगोत्री जी से आ रही है।
और ये रघुनाथ मंदिर सामने दिख रहा है, अच्छा रघुनाथ मंदिर। कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे, तो भगवान राम के नाम से ही कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिताजी दशरथ जी के यहाँ पर पिंडदान करा था, तो इसी करके इसको देवप्रयाग कहा गया। ঘাটে নামা যাবে না? ये देवप्रयाग। ওই পার থেকে নামতে হবে জানো? और यहाँ से ये गंगा जी, अब ये गंगा जी हो, गंगा जी चल रहा हाँ अब ये गंगा जी। यहाँ से सीधी अब ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर अपना यूपी होते हुए बनारस, इलाहाबाद। गंगा सागर। हाँ ये गंगा नदी देखते पाচ্ছেন, गंगा अलकनंदा, ये अलकनंदा, ये अलकनंदा, और ये गंगा जी, ये गंगा जी ये अलकनंदा बद्रीनाथ से आता है। बद्रीनाथ, ये अलकनंदा बद्रीनाथ से आता है। हाँ ये यहाँ से, इसके बाद पड़ेगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद पड़ेगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। मंदाकिनी केदार बाबा के दर से आ रही है, केदारनाथ से, और अलकनंदा आपका बद्रीनाथ से। रुद्रप्रयाग से फिर वो अलकनंदा ही रहेगा। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा। हाँ और रुद्रप्रयाग से आगे जाएंगे फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर जोशीमठ, चमोली होते हैं जोशीमठ, जोशीमठ से फिर बद्रीनाथ आएगा। এই যে গঙ্গা নদী উৎপত্তিস্থল গোমুখ থেকে, এখান থেকে হরিদ্বার হয়ে উত্তরপ্রদেশে এই জল আমাদের গঙ্গাসাগর, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গঙ্গাসাগর, এই গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শ্রীনগর গাড়ি ঘুরবে, ও গাড়ি ঘুরবে, ও সবাই উঠে যাবে এই পাথরটা। भैया इंडियन राइस से क्या मिलेगा? এটা ভেজ বিরিয়ানি 160 টাকা। এটা পনির, এটা কি কি ये पनीर बटर मसाला है 190 টাকা। এটা ভেজ বিরিয়ানি 160 টাকা নিয়েছে। এটা পনির পোলাও 180 টাকা। প্লেন রাইস 70 টাকা দাম আছে। আমরা এখানে খেতে ঢুকেছিলাম, আর সেই খাওয়ার হোটেলের বারান্দা থেকে ভিউটা ঠিক এই রকম লাগছে। कितनी सुंदर लगता है, आप लोग देखिए। ও ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সন্ধ্যায় হোটেলে গিয়ে ফোন করি। এটা বন্ধ করে আমার তো ওটা কি করছো? বলো, এটা হরিদ্বারতে জয়সিমঠ যাওয়ার পথে এই লেকটা। হরিদ্বার থেকে জোশীমঠে যাওয়ার পরে এই লেকটা, কি সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য।
উঠছে। তো ওপরে উঠতেছে হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ যাওয়ার পথে এই লেকটা পরে অপরূপ সুন্দর, আর পরে সব সৌন্দর্য মাধুর্যতা খুবই অপরূপ সুন্দর। हुआ और रिबन काटा गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। जब मोदी 2014 में आए, इस कैसे बनाओगे, कैसे करोगे? 5 साल में इन्होंने बना के तैयार कर दिया। এটা ধারী দেবী টেম্পল। এটা জলের উপরে ছিল। ও নতুন বাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে। তুমি কিছু লাগাইনি। তোর বাবার বলতো বন্ধু একটা কিনতে। ये क्या है? ये झील है। ये झील है ना, गंगा नदी है। পাকা में क्या कह रहे? गंगा नदी है। আমাদের সাথে সাথে যাচ্ছে আলোকনন্দা নদী। আর আলোকনন্দা নদীর জলটা পুরো গ্রিন। देखना चाहेंगे? चलो एक छोटा 2 मिनट रुक दो यहाँ पर। हाँ, ये पूरा आर्मी का। डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, इसमें एक नाम केदारनाथ जी पड़ता है, और ये मंदाकिनी है केदारनाथ जी से, ये मंदाकिनी केदारनाथ से आया। केदारनाथ से, और वे अलकनंदा तो अलकनंदा बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से ये संगम है। ये संगम है, इसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ये जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग और ये सब आर्मी कैंप है यहाँ पर। ये आर्मी कैंप है, जहाँ पर वो पेड़ खड़े हुए हैं वो आर्मी कैंप है। ये टोटल आर्मी ये जो आर्मी कैंप है। हाँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है वाइट वाली, ये GMVN है। ये सादा सादा बिल्डिंग हाँ, गेम में ये GMVN है। ये आर्मी GMVN का गेस्ट हाउस है। ये जो वाइट दिख रहा है ना पिलर के ऊपर, ये GMVN का एक गेस्ट हाउस है, VIP गेस्ट हाउस है। যখন আমরা হরিদ্বার থেকে আসছিলাম, হরিদ্বার থেকে যোশীমঠের পথে এই স্পট है। আমাদের সামনে আলোকনন্দা নদী আমরা দেখতে যাচ্ছি। ছুটবি না মাম, ছুটবি না কিন্তু। ও বাবা, এটা আলোকনন্দা নদীর। কি হবে? আর আমরা হরিদ্বার থেকে উকিমঠ যাওয়ার পথে এই লেকটা, আর কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওরা দেখুন। এটা আলোকনন্দা নদী। ये चाय हो लानते हैं यार।
চশমাগুলো লাগিয়ে ফটো তুললে ভালো লাগবে। বন্ধু চশমাটা লাগা। नाम चढ़वाया दिल्ली के अंदर राशन कार्ड पे नाम चढ़वाने के बाद दिल्ली का लाइसेंस बना फिर मेरा। वो लाइसेंस बना 98 में, और वो भी करीबन अगस्त और सितंबर के आसपास जाके तब मैंने दिल्ली के अंदर गाड़ी जो है पकड़ी पर। अच्छा ठीक है। सीमेंट का छिड़काव हो रहा है उस पर। अच्छा और जाली दिया, जाली का हाँ, जाली रखने के बाद বলতে হয় এই দৃশ্য দেখার জন্য আমরা অনেকদিন অপেক্ষা করছিলাম। তাই যাই। বলো না, তুমি পাশ থেকে বলো। এই দৃশ্যটা দেখার জন্য আমরা অনেকদিন অপেক্ষা করছিলাম। তা দেখার জন্য আমার মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকুন। ठीक है, ठीक है, ठीक है। আরে ডবল করাও। फोटो भी खींचना है, फोटो भी खींचना ডবল করতে সময় লাগছে। है। यहाँ से रास्ता जा रहा है, एक साइड केदारनाथ और एक साइड आपका चौकता। এখান থেকে একদিক চুপটা একদিক। फिर से जरा बोलिए भाई जी, हाँ, फिर से जरा बोलिए। अभी जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर लेफ्ट साइड में जा रहा है केदार बाबा के दर के लिए, और राइट साइड में जा रहा है चौकता के लिए। चौकता, उसके बाद गोपेश्वर, और गोपेश्वर होते हुए चमोली होते हुए जोशीमठ से बद्रीनाथ। अभी थोड़ा सा आगे है, आधा किलोमीटर। 8 किलोमीटर बाकी है। आधा किलोमीटर। तो वो चाहिए जिसको भूत भविष्य वर्तमान क्या पशु क्या कहने वाला है वो अभी थोड़ा दिखा, अब दिख जाएगा। चौखंबा पर्वत दिख जाएगा। युधिष्ठिर जो है वो धर्म का ज्ञाता था। शास्त्रों में सबसे ज्यादा कोड द्रौपदी को था। तो जब इन्होंने कहा कि भगवान हम कोड से मंडी किसी टाइम दिखाते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ से आशीर्वाद दे रहे। इसके दर्शन बहुत शुभ हैं और यहाँ के लोग हमेशा इसको प्रणाम करते हैं। এই পর্বতটার নাম চোখম্বা चौखंबा পর্বত। पर्वत। এই চোখম্বা পর্বতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্বরূপ দেখা যায়। বর্ধন করে। माया देवी टेम्पल के बाद यहाँ पर हो गई चौथी होगी माया देवी टेम्पल। 4 हो गई ना, एक मनसा देवी हो गई, एक चंडी देवी हो गई, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गंगा जी होगी, हाँ। चौथे नंबर पे माया देवी हो गई, 5वें नंबर पर आती है माता सती। माता सती। সতী। साथी सती भगवान शिव की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी थी माँ भगवान शिव की माँ उमा। ওমা। उनके भी कोई संतान नहीं थी। दूसरे नंबर पे माता सती। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी ওমা দেখো ওই মন্দিরটা और उसकी भी बहुत এই যে রুট দেখা যাচ্ছে সামনে একটা, এই রুটটা থেকে গেলে गौरीकुंड केदारनाथ। देखिए वो गाड़ी जा रही है ना वहाँ से, ऐसे घूम के ऐसे करके अभी मैं थोड़ा सा और आपको